नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। आज के द लाइफ स्टोरी के इस ब्रॉडकास्ट में जिन शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वे हमारे जम्मू की फिटनेस गुरु हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर भी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मिलवाते हैं मिस आरती महाजन जी से। सो आरती जी, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Prerna, for inviting me and giving me this opportunity to meet your audience. Yeah, thank you so much. So we'll start your own introduction to our viewers. Hi, this is Aarti Mahajan, and I am an entrepreneur, lifestyle influencer, and event organizer. And from last 16 years, I am training women and kids for fitness, health, and mindfulness. Okay, that's great. So हम ये जानना चाहेंगे कि what inspired you to start your fitness journey? To be very honest, I didn't start it in that way. I wanted to be a fitness trainer, but I wanted to be an entrepreneur. So what happened? It was like eventually I got to know that if I want to be a entrepreneur in fitness field, then I need to learn the basics of the business. So Okay. that is to learn fitness as a whole course. So I actually found need of qualifying myself, educating myself for these fitness courses, and then I wanted to train people. So and I started enjoying training women and kids. So eventually, Why particularly for women only? See, when I started, I found that there was a dire need of women to be serious about their own fitness and their health, because they always used to take their own health for granted. Even till now, I don't think that scenario is completely changed, but yes, up to some extent it is improved. But at that time, I'm talking about 16, 17 years back. So that time women were like very casual about their own health there, because they used to feel that it's their duty to fulfill all the needs of their own family members yeah, and all and they always took their own health for granted. So I found women in the age group of I think 40. So they were having arthritis and other medical issues, which they again nobody cared. So but they were in pain. So then I realized that I think this is high time to aware women and educate women about their own health. So that's how I took only women as a project, because men were quite conscious about their health. So even now, if you see, the percentage of men those who are going to gym is way more than women. Yeah, that's great. So आरती जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सभी की लाइफ में एक मुश्किल पड़ाव आता है, हर्डल्स आते हैं, सो आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे, तो कितना मुश्किल रहा उनको फेस करना, यहाँ तक पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट रहा? से किसी की भी लाइफ ना इजी नहीं है. सो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन चैलेंजेस इन देयर ओन वे. सो बट इट इज दैट कि हाउ यू डील विद इट, एंड आप अपने चैलेंजेस को, अपने हर्डल्स को किस तरीके से एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हो, एज अ मोटिवेशन यूज़ करते हो कि लाइक यू वांट टू कम आउट ऑफ इट and grow bigger in life, or you want to sulk and just cry over it and be no one in life. So I chose to come out of it and shine bright. Okay, that's wonderful. So आरती जी, you're a mother also. Yeah. ठीक है, तो कितना मुश्किल रहता है मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करके चलते हैं आप? It is actually difficult. I won't say कि no, it is very easy. No, it's not. It's actually difficult. And जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी नीड्स और बढ़ती जाती हैं, और हमें लगता है ये ईजी हो जाएगा, बट नहीं, वो कभी ईजी नहीं होता, वो और डिफिकल्ट होता जाता है विद टाइम. challenges start becoming bigger. But it is just that एक मदर इंस्टिंक्ट्स आपको जो है वो they keeps you going, और out of love you do everything. उनसे मोटिवेशन भी उन्हीं से ही आती है. Exactly. So that actually helps you to build yourself as a better human being, और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब once you become a mother. So it's actually not easy journey, but yes, with love and affection you just
go through it. ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। तो आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कई मतलब प्रताड़ित किया जाता है, पीछे रखा जाता, उन्हें अपने खुद के डिसीजंस लेना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन महिलाओं के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें आगे आना चाहिए, अपने राइट के लिए खड़े होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? इस चीज़ के लिए मैं यही बोलूँगी कि दो आई टोल्ड यू कि वुमेन ऑलवेज टुक देम सेल्फ फॉर ग्रांटेड, और बहुत लोग बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की क्या ज़रूरत है, बस ये अपना वुमेन कार्ड लेके आ जाते हैं, ये है वो है, बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वुमेन अभी भी सप्रेस्ड है। सो दे आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ रेजिंग देयर ओन वॉइस। वो अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हैं, अपने लिए बात नहीं कर पाती हैं, तकलीफ में रहेंगी पर बात नहीं कर पाएंगी, बोलेंगी नहीं कि क्या चाहिए, क्या उनको क्या अंदर ही अंदर घुटती जाएंगी बिल्कुल। हाँ। और पता भी नहीं चलने देंगी। तो उस चीज़ के लिए हमने एक वुमेन ग्रुप फॉर्म किया है जम्मू में, दैट इज़ राइजिंग वुमेन। और उसमें हमने जम्मू की हर बैकग्राउंड की जो लेडीज़ हैं उनके लिए हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। सो दे कम एंड ओपन अप, दे टॉक अबाउट देयर लाइफ या फिर अबाउट देयर बिजनेस, जो भी वो कर रही हैं अपनी लाइफ में, दे टॉक अबाउट इट। सो हमने एक वुमेन ग्रुप फॉर्म किया है सो दैट कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा बूस्ट दे सके और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने बारे में बात कर सके और उनको शायद कोई राइट गाइडेंस मिल जाए वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क ओवर इट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने माय बस से। सो अगर हम बात करते हैं कि लाइक यू आर अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर आल्सो, सो मतलब किस तरह से आप अपने आप को अप टू डेट रखती हैं जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के साथ, फैशन लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के साथ, किस तरह से? इट इज़ ऑल अबाउट माई ओन टेस्ट। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसको फॉलो करना है। सो आई इन्जॉय बीइंग माई सेल्फ। और हाँ, मतलब शायद कहीं वो स्टाइल लोगों को पसंद आता है तो दैट्स व्हाई मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर फॉलो करते हैं आपको। एग्जैक्टली। सो बिकॉज आई थिंक आई एम बीइंग मी, सो दे लाइक मी फॉर बीइंग लाइक दैट। तो इसलिए आई थिंक आई हैव गुड नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर कनेक्टेड टू मी। व्हाट्स योर स्टाइल कोड? Style code is just being yourself. Okay. Just be who you are. You need not to fake yourself. Yes. Yeah. Fake करोगे तो वो लोगों को ना feel हो जाता है. So they don't feel connected with you. So जितना आप real रहोगे, जितना आप honest रहोगे, उतना ही आपको connection ज़्यादा better form होगा आपके audience के साथ. जी. So you run a fitness studio also. Yeah. So हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के clientage वहाँ पे रहते हैं? Mostly मतलब girls की अगर हम बात करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहता है कि मुझे वेट लूज़ करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, आप मैम ये कर दीजिए, मैम वो कर दीजिए। तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं स्पेशली उन क्लाइंट्स को? मुझे लगता है कि फिटनेस ट्रेनर्स जो है वो मोस्टली फिटनेस काउंसलर्स भी होते हैं। सो वंस समबडी कम टू अस, हम उनको ना पहले वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि इनको चाहिए क्या। सो अब फिटनेस गोल्स जो हैं लोगों के मोस्टली वो गलत ही होते हैं। उनका ये होता है कि हमें वेट लॉस करना है क्योंकि हमें पतला दिखना है। सो हमारा ये होता है कि इट इज़ दैट वी वांट देम टू अडैप्ट फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल. इट इज़ नॉट फॉर फैशन, इट इज़ समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ योर लाइफ. एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप उसको एक फैशन में ले रहे हो. इट इज़ जस्ट लाइक फूड इज़ योर नीड, राइट? वाटर इज़ योर नीड. तो फिटनेस भी वैसी ही एक नीड है जिसको फैशन में बना दिया गया है और उसको ज़्यादा फैंसी करके कि भाई इट्स ऑल अबाउट वेट लॉस एंड मतलब वो नैरो डाउन करके उसको सिर्फ उतना ही रख दिया है. तो वेट लॉस जो है वो आपके अच्छे गुड लाइफस्टाइल का एक बाई प्रोडक्ट है. So that is not the main thing which you need to focus. You need to focus on your fitness lifestyle. So that is required कि उसको adapt it as your lifestyle, जो कि बहुत important चीज़ है. जो लोग जैसे उनके बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं. मेरे 3 महीने के बाद मुझे बीच पे जाना है तो आई वांट बीच बॉडी. मेरे
4 महीने 6 महीने के बाद शादी है, स्पेशली शादी से पहले लड़कियां मुझे लहंगे में फिट आना है, तो मतलब पहले कभी वर्कआउट नहीं किया होगा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन की बस उस चीज में आ जाएंगे। 6 मंथ्स में हमें वो रिजल्ट्स चाहिए। सो मतलब तो क्या आप सप्लीमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे कि कुछ लड़कियां कहती हैं ना कि हाँ आप हमें सप्लीमेंट्स देती है सो दैट मतलब जल्दी हमारी बॉडी उस चीज पर आ जाए। You have no idea girls क्या क्या करती हैं वेट लॉस के लिए। So they starve themselves, they do all the crazy thing, but ये चीज़ें मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ। I always tell them कि अगर अभी आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए सब कुछ करोगे, so you will face problems in your future. दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन फ्यूचर। कोई ना कोई आपको हेल्थ इशू ऐसा हो जाएगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, यस हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, देयर आर इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, मतलब इनके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। एग्जैक्टली, दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन आल्सो। ओके, सो अगर आप अपने आप को स्टार्व करेंगे दैट विल इफेक्ट योर ब्रेन। सो अल्टीमेटली या आप चिड़चिड़े रहेंगे या फिर आप मूड स्विंग्स रहेंगे आपके, आप बहुत लो फील करोगे, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू, आप सोशली कट ऑफ करोगे, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आप एक्चुअली इन शॉर्ट मतलब आप उन्हें ये कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट, सिंपल सी बात है, देयर इज नो शॉर्टकट, इट इज ऑलवेज फॉलो द लॉन्गेस्ट रूट व्हिच इज द राइट वन। सो वो आपको जो रिजल्ट्स है वो आपको इवेंचुअली मिल जाएंगे, बट इट इज नॉट समथिंग कि मुझे 3 महीने या 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, नो। So have patience with it. Exactly, you need to have patience, consistency, dedication, discipline. So it is all about, see, majorly it is about discipline. So अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, जो कि आजकल मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, 99% लोगों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिनकी लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करते हैं, थोड़ा सा अगर आप रूटीन अपनी मतलब डिजाइन करते हैं अपने दिन की, कि मुझे दिन सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, कैसे करना है, तो आई एम श्योर आपको मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, माइनर होंगी, उनके ऊपर यू कैन वर्कआउट। सो आप, ये तो बात हुई वेट लूज करने की। अगर हम वेट गेन की बात करें तो उसके ऊपर लाइक मतलब उसका क्या रहता है कि वेट गेन क्या उतना ही डिफिकल्ट रहता है जितना वेट लूज करना? बिल्कुल, देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु आर गोइंग थ्रू दिस, उनका वेट गेन ही नहीं होता क्योंकि दे हैव गॉट वेरी हाई मेटाबॉलिज्म। सो उसके लिए उनको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है। अगेन दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विद देयर वर्कआउट उनको भी करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत सारी ना स्लिम गर्ल्स आती हैं, मतलब ऐसे लीन गर्ल्स आती हैं, स्किनी, हाँ, तो दे कम टू जिम एंड उनको ना वो दे कम फॉर देयर ओन फिटनेस, फॉर देयर ओन हेल्थ। वो अपने टारगेट मतलब अपना माइंड सोच के आए हैं। तो जो बाकी लोग होते हैं ना वो उनको डिस्करेज करते हैं, अरे तुमको क्या जरूरत है, तुम तो पहले से पतली हो। एग्जैक्टली, सो दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज द माइंडसेट व्हिच वी नीड टू चेंज। लोग पतले या मोटे होने के लिए जिम नहीं जा रहे हैं, इट इज अबाउट बेसिक फिटनेस, बेसिक हेल्थ, जो विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली, तो वो चीज़, और आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिफ्रेन। जो लोगों को नहीं समझ में आता, वो लोग दूसरों को डिस्करेज जब करते हैं तो वो उनको माइंड में कहीं ना कहीं हिट हो जाता है। हाँ, तो वो सोचते रहते हैं कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ ये करके, मैं दे क्वेश्चन देमसेल्व्स। सो ये क्वेश्चन जो है, जो पूछ रहा है, दैट पर्सन इज यू नो अनएजुकेटेड, या फिर उसको नहीं पता है। लेकिन जो ये तो सीधे सीधे हो गया ना कि उसको डिस्करेज कर देना। एग्जैक्टली। तो वो इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। व्हाई यू नीड फिटनेस, व्हाई यू नीड टू डू वर्कआउट, इट इज बिकॉज द बेसिक नीड ऑफ द लाइफ। या एब्सोल्युटली। सो बॉडी शेमिंग की अगर बात करें तो कुछ गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इसका शिकार होती हैं, तो क्या ऐसे भी कुछ केसेस आपके आगे आते हैं? लाइक आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं अगर आते हैं तो? इट इज़ नॉट जस्ट गर्ल्स, मेन ऑल्सो। बॉडी शेमिंग हर एक की होती है, कितना सूखा है, कितनी सूखी है, कितना मोटा है। ऐसे कमेंट करना बहुत इजी है, हाँ, बट जो लेता है उसके लिए एग्जैक्टली उसके माइंड में वो बैठ जाती है। एंड दिस इज सीरियसली अ बैड थिंग टू डू। और बेसिक मुझे लगता है कि मैनर्स में आती है चीज, लोगों को शायद अभी तक नहीं आई है। तो हम बड़े कैजुअली, बड़े मजाक में बोल देते हैं। तो फिर अगले को अगर मतलब कहीं हिट हुए तो देन यू जस्टिफाई योरसेल्फ बाय सेइंग, अरे मैंने तो सिर्फ मजाक ही किया था। नो, दैट्स नॉट अ मजाक डूड। मतलब किसी और को ऐसे कमेंट कर देना, एग्जैक्टली साइकोलॉजिकली हिट कर जाता है। तो सही बात है जी। सो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है आपकी। सो कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी आपको मिलते होंगे, क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता होगा, तो किस तरह से आप उसे फेस करती हैं? सी
क्रिटिसिज्म तो आपको हर फील्ड में मिलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ इसमें ही सोचा। हाँ, इट्स जस्ट दैट वी आर लाइक मोर यू नो प्रोन, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सामने लोगों को फेस करते हैं, लाइक मीडिया। तो इज इज दैट इट्स ओके, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है देन यू टेक इट, अदरवाइज जो फालतू का है तो जस्ट इग्नोर इट और ब्लॉक इट, सिंपल। सो मेरा एक ही बट्टा, अगर कोई फालतू बात हो रही है तो उसको ब्लॉक कर दो। ओके, ठीक है, शॉर्टकट। जस्ट ब्लॉक इट। ठीक है। सो आज हम देखते हैं कि स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो यंगस्टर्स जो है मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट फेलियर्स के काफ़ी केसेस देखे जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? सी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्टडीज़ जो अभी हो रही हैं, लेकिन हाँ कोविड के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। सो आई थिंक 35 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं दे आर मोर प्रोन टू दीज हार्ट अटैक्स। सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट स्टडीज़ जो हुई हैं, लेकिन हाँ आई थिंक पीछे कोविशील्ड का भी कुछ आया था। बट ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब रैंडमली देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपके एक तो हमारा लाइफस्टाइल इज़ वेरी बैड। हम जो खा रहे हैं वो भी न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं दैट इज़ अगेन नॉट, मतलब हम अपनी तरफ से अपने हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन वो भी कितना हेल्दी है वो सबको पता ही है कि मतलब कितनी वो उसमें मिलावट हुई हो रखी है या कितना उसमें एडल्ट हो चुका है। बट इज इज़ दैट कि अपना लाइफस्टाइल अगेन अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में आप करेंगे तो ओवर भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। देयर आर पीपल दोज हु गो एक्सट्रीम, सो उस चीज़ को भी थोड़ा कहीं ना कहीं मॉडरेशन में लाना ज़रूरी है। तो कुछ मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम है, जो लोग एक्सट्रीम ट्रेनिंग में चले जाते हैं, और कुछ यस हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट। तो क्या कुछ ऐसा भी रहता है कि किसी के दिमाग में बात होती है कि मैंने भी सुना है कुछ से मतलब जिम जाने से पहले 1 घंटा पहले कुछ खाएंगे नहीं, या जिम जाने से पहले कुछ सप्लीमेंट्स लेकर जाएंगे, तो इसका भी कुछ ऐसा भी कुछ होता है? जिम जाने से पहले ऑफ कोर्स आपको 1.5-2 घंटा पहले तो प्रेफर करें कुछ ना खाया हुआ, सिंपल। और सप्लीमेंट्स में लोग लेते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, एंड दैट इज़ नॉट बैड, इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ। आप एक्सट्रीम ट्रेनिंग करेंगे और प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो अगेन एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? न्यूट्रिशनिस्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि मुझे लगता है कि जम्मू में लोग शायद सुनते भी नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट को। तो मेरे एक फ्रेंड है, शायद उन्होंने आपसे वो किया था इंटरव्यू, तो वो बहुत बात करते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आई एम प्रीटी श्योर लोग सुन के एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो दे डोंट फॉलो इट। सो जब लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको ये ऐसे डिजास्टर्स केसेस सुनने को कम मिलेंगे। सो हाँ, लोग फॉलो नहीं करते। मतलब हु डू यू फॉलो? मेरी तो उन्हीं के साथ है, गुरमीत गुजराल डाइटिशियन, तो उनके साथ तो मतलब वो मेरे पास वर्कआउट के लिए आते हैं, मैं उनसे डाइट के लिए वो करती हूँ, काउंसलिंग लेती हूँ। तो मतलब वी हैव गुड बॉन्ड आल्सो, एंड बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे दोनों। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। सो आरती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस सेगमेंट में एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसका नाम है रैपिड फायर। सो शैल वी स्टार्ट? श्योर। ओके, the first thing you do when you wake up in the morning? I brush my teeth. Okay, मैंने एक्सपेक्ट किया था आप बोलोगे कि हाँ मैं फ़ोन चेक करती हूँ, बिकॉज मोस्टली मतलब यही आंसर होता है सबका। But that's a bad habit, I think. Yeah. What makes you smile the most? My son. Okay, so okay, you have to choose one. Netflix or YouTube? Netflix. Okay, heels, flats or sneakers? Sneakers. Okay, vintage or new? Vintage. Okay, sweet or salt? I think both. Both. Yeah. Okay, Chinese or Italian? Chinese. Okay, living in the moment or planning for the future? Living the moment. Okay, that's great. So, what's that one thing you notice about someone when you first meet them? Their smile, whether it's there or not. Whether it's fake or not? No, it's there or not. There are some people those who don't smile. It's always mostly it's missing. Okay, ठीक है, बहुत rare answer है ये. Yeah. Okay. Okay. What's the one thing you always wanted to try but you've been too scared to do? I think
whatever I've achieved, I had always been scared to do. So I just faced my fears. Yeah. Okay. What's one thing that you are deeply grateful for in your life? For life, I'm grateful. you're blessed with life. That is the most. I think that's a blessing. Okay. Particular, not one thing. One thing. What is that One one thing. thing? I think I'm grateful for everything. So I don't know the one thing. I just don't know how to narrow it down. Okay, okay. Yeah. Second. What's one of your favorite meals of all the time? Golgappe. Golgappe. Okay. ठीक है. Okay. Name 3 person you follow on social media. 3 to nahi, I follow a lot, but Particular top 3 persons in top your list. 3. So first is our Prime Minister. Yeah, and then there are few yoga instructors whom I am following, or there are some meditation. Motivational speakers. Yes, like motivation speakers. Yes. that. Okay. What's the best fitness advice you'll give, especially to the ladies? First of all, don't take your health for granted, and start working out now, and try to just I think you need to plan your day to get a disciplined life. So that is definitely going to help you out in achieving your goals. So whatever you want, like you want to reduce weight, you want to look good, it is not going to come with any shortcut. You just need to work for it And have dedicatedly patience. every day. Yeah. Yes, every day. So even if you are controlling your cravings to eat something, कुछ Fast भी, food, हाँ, कुछ भी. तो वो अगर आप अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट इज अगेन यू आर पुटिंग दैट वर्क इन दैट टू रीच दैट गोल. सो इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट. सो और हाँ, कीप ड्रीमिंग, सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. Okay. So, last but not the least, show us your wallpaper. Phone का कुछ wallpaper. ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे बोरिंग पर्सन. Okay. To our viewers. Okay. What is it? है क्या Actually, ये? it's a dynamic wallpaper. So every time you just click it, so there's some new Okay, okay, picture. okay. Yeah. So- Even if- Okay, so thank you I so get much bored for now. having such a lovely conversation with us, Thank Aarti ji. you. Same here. So अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए और Thank हमारे you. व्यूअर्स के साथ रूबरू होने के लिए थैंक यू सो Thank you मच. so much. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरती जी, हम हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे. मैसेज यही है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो सब चीज़ें करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ हमें बार बार मौके नहीं देती है, और अगर मौका मिला है तो जस्ट ग्रैब इट एंड डू वट एवर इट टेक्स. सो एंड लिव योर लाइफ. सो दर्शकों, ये थी हमारे साथ आरती महाजन जी, जिनसे हमने बात की, आपको भी रूबरू करवाया. जल्द अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ, आपको भी रूबरू करवाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा चंबोल.